Good morning, fifth class. So today we are going to start with a new chapter of our EVS book, and the name of this chapter is Conservation of Natural Resources. Now this unit is about natural resources. Now what are natural resources? Natural resources are those resources which we do not produce but they are available through nature for us. ना जो चीज़ हमको नेचर ने दी है, नेचर ने हमको क्या क्या दिया है? नेचर ने हमको पानी दिया है, हम पानी बनाते तो नहीं है ना, पानी हमें मिलता है, राइट? वी गेट वाटर फ्रॉम नेचर, वी गेट एयर फ्रॉम नेचर, राइट? सो जो भी चीज़ हमको नेचर ने दी है, दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. द water we get, right? The soil we have, we don't produce soil, we already have that in on our earth, right? We have minerals. So these are natural resources. Now this chapter is about conservation of natural resources. Now what is conservation? Conservation मतलब किसी चीज को बचा के रखना, कंजर्व करना, संभाल के रखना, ठीक है, उसको वेस्ट नहीं करना, तो उसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. नाउ इन दिस चैप्टर वील स्टडी अबाउट वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज वी हैव एंड हाउ टू कंजर्व देम, हाउ टू सेव देम फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन, ताकि आने वाले लोग भी, हमारी आने वाली जनरेशन भी जो है वो उसको यूज कर सके, ठीक है, कहीं वो खत्म ना हो जाए, तो उनको हमको संभाल के रखना है. वी यूज सेवरल थिंग्स इन आवर डेली लाइव्स. सम ऑफ देम आर सो एसेंशियल दैट वी कैनॉट लिव विदाउट देम. अब वो कौन कौन सी चीजें जिनके बिना हम नहीं रह सकते हैं? दैट इज एयर, वाटर, सॉइल एटसेट्रा. सो विदाउट एयर वी कैनॉट ब्रीथ, विदाउट वाटर वी कैनॉट लिव, ठीक है, पानी के बिना हम मर जाएंगे. सॉइल नहीं होगी तो हमारे प्लांट्स कहाँ पे उगेंगे, ठीक है, हम खाएंगे कैसे? So all these are natural resources and we cannot live without them. So in this chapter we'll be studying that how we should conserve our natural resources. The nature has given us many things which we use. These things are called natural resources. जो nature ने हमको दिया है उसको natural resource बोलते हैं. We should conserve our resources. We are using and wasting our natural resources at a very fast rate which can result in very hard consequences. जिस तरह से हम अपने natural resources को waste कर रहे हैं, अगर हम ऐसे ही waste करते रहे तो हमें बहुत बुरे परिणाम उसके भुगतने पड़ेंगे. Let us see how we can conserve our natural resources. Now, wise and careful use of resources is called कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. अब क्या होता है कंजर्व करना रिसोर्सेज को? रिसोर्सेज को वाइजली मतलब अच्छे से अच्छे दिमाग, सही दिमाग से और केयरफुली उसको यूज करना, उसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. नाउ हाउ वी कैन कंजर्व आर वेरी इंपॉर्टेंट natural resource, that is water. We should not waste water. We should use bucket while bathing instead of using showers. We should not throw waste into our water resources. हमें कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए नदियों में. We should the clothes which we use for the water which we use for washing clothes, we can reuse it for cleaning floors, for flushing it in the toilet. Like this we can use it. We should not leave our taps running while brushing, shaving, etc. Farmers should use better method of irrigation like sprinkler irrigation. Water in factories, industries should be recycled several times. We should not pollute our water resources by throwing garbage, sewage, etc. into it. Washing clothes and bathing animals in ponds, lakes, etc. also pollute them. हमने ये पढ़ा हुआ है कि पानी में अगर हम जानवरों को नहलाते हैं या पानी में कपड़े धोते हैं तो उससे नदियां जो है वो गंदी होती हैं. तो ये सब भी हमको नहीं करना चाहिए, कूड़ा भी नहीं फेंकना चाहिए वहां पे. एंड वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज टू मेंटेन द वाटर साइकिल इन द नेचर. और वाटर साइकिल को मेंटेन रखने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, तभी जो है वो बारिश ज्यादा होगी. रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ कंजर्विंग वाटर. By this method, the rain water does not go wasted. It is collected in tanks and is put to use later when required. तो जो बारिश का पानी है उसको भी हमको बचा के रखना चाहिए. पिट्स बनाए जाते हैं जहाँ पे पानी, बारिश का पानी सेव होता है और उसको हम बाद में अपने धोने के लिए, पौधों में डालने के लिए, इन सब चीजों के लिए हम उस पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं. So that's how we have to save our water. Next is conservation of soil. Now like water, soil is also very important. अगर soil नहीं होगी तो हमारे खाना कहाँ बनेगा, हमारे क्रॉप्स कहाँ पे ग्रो होंगी, पेड़ कहाँ लगेंगे? तो soil is very important. अब हम बिना soil के नहीं रह सकते हैं. So soil is very important resource. It took millions of years to form the soil. कितने करोड़ों साल लग गए हैं सॉइल को बनने में. इट बिकम्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंजर्व दिस गिफ्ट ऑफ नेचर. मेन फैक्टर ऑफ डैमेज टू द सॉइल इज सॉइल इरोजन. अब सॉइल कैसे डैमेज होती है? एक तो केमिकल्स
से सॉइल खराब होती है। द सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जिससे सॉइल खराब होती है वो सॉइल इरोजन होता है, मतलब मिट्टी का बह के चले जाना। सॉइल इरोजन क्या होता है, जो ऊपर की लेयर, जो फर्टाइल लेयर होती है जिसके अंदर क्रॉप्स को ग्रो करा जाता है, जहां पेड़ लगते हैं, जहां से हमें खाना मिलता है जिस सॉइल से, वो सॉइल जो है वो टॉप लेयर होती है, फर्टाइल होती है वो, ठीक है, उपजाऊ मिट्टी होती है। अगर बाढ़ आती है तो वो, या बहुत तेज हवा चलती है तो वो जो ऊपर की फर्टाइल लेयर होती है वो उड़ के चली जाती है, उसको सॉइल इरोजन बोला जाता है, ठीक है। इसलिए उसको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा पेड़ अगर हम लगाएंगे तो जो पेड़ है, पेड़ की जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को पकड़ के रखती हैं, दे होल्ड द सॉइल, और उससे जो है सॉइल इरोजन नहीं होता है। बाढ़ आया, कुछ भी आया, उससे सॉइल इरोजन नहीं होता है। सो वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज टू कंजर्व आवर सॉइल। Soil can be conserved by taking following measures. अब क्या क्या कर सकते हैं? We should plant as many as trees to stop soil erosion. This is called afforestation. Afforestation का मतलब होता है पेड़ों को लगाना, और deforestation का मतलब होता है पेड़ों को काटना। So crop should be rotated to replenish the lost nutrients. अब क्या होता है, आपने देखा होगा कि खेतों में एक फसल लगती है, एक फसल के बाद दूसरी फसल लगाई जाती है, सेम फसल नहीं लगाई जाती है। उसका रीजन ये होता है, उसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। अगर आप एक ही फसल बार बार लगाते रहोगे तो क्या होगा, वो फसल जो है वो न्यूट्रिएंट लेती रहेगी सॉइल से, और सॉइल के न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएंगे। तो हमेशा जो खेतों के अंदर है ना, वो क्रॉप रोटेशन करी जाती है, एक के बाद दूसरी सॉइल लगाई जाती है, ताकि जो है वो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स जो है वो मेंटेन रहें, ठीक है, रिप्लेनिश हो जाएं दूसरी क्रॉप लगाने से। सो क्रॉप रोटेशन मीन ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स एवरी ईयर। वन टाइप ऑफ क्रॉप टेक्स अप वन टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल एंड सॉइल लूजेस दैट न्यूट्रिएंट फास्ट, thus become barren. But rotation of crops every year maintain the balance of the nutrients in the soil, and this maintains the fertility of the land. So that's why crop rotation is very important. For example, 1 year corn is sowed. एक साल जो है वो कॉर्न लगाया गया, मक्का लगाया गया। इट टेक्स अप अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम दी सॉइल, और वो कॉर्न क्या करता है, सॉइल से बहुत सारा नाइट्रोजन ले लेता है। इफ वी ग्रो, अगर हम नेक्स्ट टाइम जो है लेग्यूमियस क्रॉप्स जैसे पीज हो गई, बीन्स हो गई, ये लगाएंगे, इट विल रीस्टोर द नाइट्रोजन बैक इनटू द सॉइल। लेग्यूमियस प्लांट्स कैन ट्रैप द एनवायरमेंटल नाइट्रोजन एंड गिव इट बैक टू द सॉइल। तो ये सॉइल इरोजन होता है कि एक साल आपने मक्का लगाया, मक्का लगा के आपने सॉइल से नाइट्रोजन ले लिया, ठीक है, क्योंकि मक्का जो है वो सॉइल से नाइट्रोजन लेता है। और नेक्स्ट ईयर आप क्या करोगे, आप ये क्रॉप्स लगाओगे, जैसे पीज हो गई, बीन्स हो गई, ये वाली क्रॉप्स लगाने से क्या होता है, वापस से सॉइल के अंदर नाइट्रोजन चला जाता है, क्योंकि ये जो क्रॉप्स हैं वो एनवायरमेंट से नाइट्रोजन लेती हैं और सॉइल के अंदर वापस डालती हैं। सो दिस इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। तो जब हम एग्रीकल्चर पढ़ते हैं तो उसमें हमें पता चलता है, ठीक है, कि कौन सी क्रॉप लगानी चाहिए किस क्रॉप के बाद में, ठीक है, कौन सी क्रॉप कैसे क्रॉप रोटेशन करनी चाहिए। तो क्रॉप रोटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स ऑल्सो मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड। Manures are the organic substances of waste or residues of animals and plants, while fertilizers are the chemicals. These substances give back the soil the nutrients which they have lost to the crop. तो soil को जो है वो manure और nutrients डालने चाहिए, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स डालने चाहिए, जिनसे जो है उनको वापस से रिप्लेनिश हो जाती है जो उन्होंने न्यूट्रिएंट्स दिए हैं क्रॉप को। Mixed crops are sown at the same time to save any one nutrient of the soil from being deficient. ऐसे ही mixed crops sow करी जाती हैं। Different crops consume different nutrients and thus maintain the balance of the nutrients in the soil. This is called mixed cropping. तो क्या क्या कर सकते हैं, mixed cropping कर सकते हैं, crop rotation कर सकते हैं, right? And the use of manures and fertilizers also help in saving the nutrients of the soil. Next is steps of terrace farming in hilly areas also prevent soil erosion in the hills. अब hills में क्या होता है, बारिश आती है और पूरी मिट्टी बहा के ले जाता है, तो वहां पे क्या होता है, पहाड़ों पे स्टेप फार्मिंग करी जाती है, ऐसे सीढ़ियां बना के फार्मिंग करी जाती है। इस फार्मिंग की हेल्प से क्या होता है, सॉइल इरोजन नहीं होती है, राइट। सो दीज आर द वेरियस वेज ऑफ कंजर्विंग दी सॉइल। Next is conservation of forest. Now we all know how forests are important because of forest. जितनी भी रेन होती है वो फॉरेस्ट की वजह से होती है। अगर पेड़ नहीं होंगे, जंगल में क्या होता है, बहुत सारे पेड़ होते हैं, तो पेड़ों की वजह से हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो कूल रहता है। अगर पेड़ नहीं होंगे तो अर्थ पे CO2 बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बहुत गर्मी हो जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, जो हो रही है आजकल। सो एफॉरेस्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कि
पेड़ों को लगाना बहुत ज़रूरी है, और जो जंगल हमारे पास हैं उनको बचा के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो वी शुड कंजर्व आवर फॉरेस्ट. Forest gives us many things. They give shelter to the variety of wild animals. They should be conserved by preventing cutting trees, overgrazing by animals and preventing forest fires. तो इन सब चीज़ों को हमको रोकना चाहिए. इसके लिए क्या बनाया गया है, बहुत सारे जंगल बनाए गए हैं जहाँ पे फॉरेस्ट और फॉरेस्ट के अंदर फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं, और वो फॉरेस्ट को जो है, जो लोग गलत तरीके से पेड़ों को काट के लेके जाते हैं या जानवरों पे दे किल एनिमल्स, और दे कट द ट्रीज फॉर स्मगलिंग वुड टिम्बर. तो उस चीज़ को बचाने के लिए जो है वो फॉरेस्ट रेंजर्स जो है फॉरेस्ट में रहते हैं, एंड दे कंजर्व forest. Next is conservation of wildlife. In the same manner, wildlife is also very important for the इकोलॉजी के लिए. जो हमारा साइकिल चलता है, वो इकोलॉजी के साइकिल को चलाने के लिए वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. अगर जंगली जानवर मर जाएंगे तो उससे जो है हमारा इकोलॉजी सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा. तो उसको भी हमको मेंटेन करके रहना चाहिए. वाइल्ड एनिमल्स आर हंटेड फॉर देयर स्किन, बोन्स एटसेट्रा. दे शुड बी गिवन प्रोटेक्शन. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एस्टैब्लिश्ड मेनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एंड बर्ड सेंचुरीज अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया 1972. उसके अंदर जो है वाइल्ड लाइफ को कैसे प्रिजर्व करना है उसके एक्शंस लिए गए हैं, और गवर्नमेंट क्या क्या करती है वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए. वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनी हुई हैं बहुत जगह पे, टाइगर सेंचुरीज हैं, बर्ड सेंचुरीज हैं, उन सबको बनाया गया है ताकि आप वाइल्ड लाइफ को बचा के रख सके, ताकि जो लोग पोल्चिंग करते हैं, जानवरों का शिकार करते हैं, उनको रोका जा सके. नेक्स्ट इज कॉन्जर्वेशन ऑफ मिनरल्स. नाउ वी नो दैट वी गेट मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ. हमको अर्थ से मिनरल्स मिलते हैं, एंड मिनरल्स जो है उनको बनने में करोड़ों साल लग जाते हैं. ठीक है, तो मिनरल्स को बचा के रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जीज आर द बेस्ट वे फॉर कंजर्विंग द फ्यूल्स एंड मिनरल्स. हमको जो है वो जैसे बिजली जो है वो कोल से बनती है, राइट, कोयले से बनती है या फिर पानी से बनती है. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और थर्मल इलेक्ट्रिसिटी. थर्मल इलेक्ट्रिसिटी इज व्हाट वी गेट फ्रॉम कोल. तो अगर हम कोल एनर्जी ज़्यादा यूज़ करेंगे, कोल को ज़्यादा यूज़ करेंगे तो कोल ख़त्म हो जाएगा एक दिन. तो वी शुड, आजकल सोलर पैनल्स लग रहे हैं, सोलर एनर्जी को यूज़ करा जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, राइट. सो इन द सेम मैनर विंड एनर्जी इज बीइंग यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. सो इन द सेम मैनर इन सबको हमको बचा के रखना चाहिए. पेट्रोल और डीजल्स की जगह आजकल जो है कौन सी कार्स आ रही हैं, इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आ रहे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलेंगे. ठीक है, तो उससे क्या होगा, पेट्रोल और डीजल जो है वो बचेगा. तो इससे एक तो पोल्यूशन कम होगा, क्योंकि कोल, डीजल, पेट्रोल इन सबसे पोल्यूशन होता है. दूसरा, इनको बचा के रखना भी ज़रूरी है, राइट. सो कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. वी शुड कंजर्व दीज रिसोर्सेज फॉर आवर कमिंग जनरेशन. जो आने वाले बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए भी बचा के हमको कुछ रखना है. सारा हम आज ही इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. सो वी शुड कंजर्व मिनरल्स. वी शुड यूज रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक सन, लाइक विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड बायोगैस. ठीक है, सो दिस शुड बी यूज इन प्लेस ऑफ नॉन रिन्यूएबल resources, right? So in this way we can save our environment and we can save the natural resources which we have got by the nature. So we should conserve water, we should conserve soil, we should conserve our forest, we should conserve our wildlife, and we should conserve the minerals as well. Now try the question and answers and I'll be sending you the same.